ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ तिरंगा लहरा के भारतीयों ਨੂੰ गणतंत्र दिहाड़े दियां मुबारकबाद दी गई। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਨੇਤਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। समारोह की शुरुआत कार्यकारी कौंसल जनरल के प्रताप सिंह ਵੱਲੋਂ तिरंगा लहराउण नाल कीती गई। तिरंगा लहराउण तो बाद लोकां ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। My dear fellow citizens, Namaskar. We, the people of India, at home and overseas, are going to celebrate Republic Day with fervor. आज बहुत ही खुशी का दिन है और आज भारत का 77th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। वेदर ख़राब होने के बावजूद भी आज इतनी नंबर्स में लोग आए हैं, ये दिखाता है कि इनके लिए देश के प्रति कितना प्रेम है। और हम कौंसलेट हर बार इस दिन को बहुत जोश से मनाते हैं और इस बार भी मना रहे हैं। और ये इस साल स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे एक रिवाइटलाइज प्रोग्राम का पार्ट है और इस कारण इतने ज़्यादा नंबर में आपको दिख रहे हैं लोग। मैं जी मेजर जनरल NJS सिद्धू। I am from Chandigarh and I am here for the last 13 years and every year I come and it is an honor to be here and celebrate our great Independence Day as well as Republic Day. In India, how you used to celebrate? Tell us more about that. Well, in army, you know, you hardly get any time to go and celebrate anywhere. You are always busy somewhere or other. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ। कि हमारी जन्मभूमि इंडिया है, हमारी कर्मभूमि कनाडा है। तो हम लोग यहाँ पे आए फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन हमने अपना रूट्स हम कभी नहीं भूले हैं। हम लोग यहाँ आने के बाद भी वी आर स्टिल अटैच टू आवर कल्चर। डेफिनेटली हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। 26 है, 15 अगस्त को हम आते हैं, होली साथ में मनाते हैं, दिवाली करते हैं हम लोग। सो डेफिनेटली हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है इसके लिए। आज मैं बहुत खुश हैं
और अपने घर जितना मैं आ गया है उतना ही लगता है। बहुत खुशी है, हम साथ में आए हैं and it's a great honor and privilege to be here at the Consulate General of India and I hope we keep coming for as long as we can. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ 77 ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज 77th रिपब्लिक डे है इंडिया का एंड इट्स बहुत ही खुशी की बात है कि हमको यहाँ मौका मिल रहा है इंडियन कॉन्सुलेट में आने का, सेलिब्रेट करने का एंड बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी बताने का हमारे देश के बारे में। तो बहुत खुशी हो रही है। हम पहले बच्चों को हमारे फ्लैग के बारे में, हमारे देश के बारे में और हमारे फ्लैग के तीनों रंगों के बारे में पहले हमने सबसे पहले बताया और इस फ्लैग में जो रंग है वो क्या दर्शाते हैं और ये चक्र क्या दर्शाता है, अशोक चक्र क्यों कहते हैं, ये हमने बच्चों को सिखाया और सिर्फ सिखाया नहीं, सिर्फ बात ही नहीं बताया, तो उन बच्चों को लेके आए कॉन्सुलेट में ताकि वो समझ सके कि क्या होता है फ्लैग अनफर्लिंग, क्या होता है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर। इट्स एक्चुअली अ ग्रेट ऑनर एंड हल्की सी घबराहट हमेशा रहती है आपके बीच में जब इतने बड़े स्टेज पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने खुद आपको बुलाया हो, तो एक चीज़ तो रहती है बट एक बहुत बड़ा ऑनर रहता है हमेशा आपके लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू जनरल कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया एंड ऑल द टीम टू इन्वाइटिंग मी हियर अगेन एंड yeah, that's it. I think it's a great opportunity as well to represent your nation in a different nation as well. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एंड मैं पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ एंड आई हैड सीन हिम परफॉर्म, सो नाउ आई वाज परफॉर्मिंग एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कॉन्सुलेट जनरल एंड स्पेशली ओवर हियर इन कनाडा। बहुत अच्छा लगता है, लाइक द स्पिरिट इज स्टिल अलाइव, सो आई फेल्ट ग्रेट। Very thank you so much for inviting me here. I'm very happy to be part of 77th Republic Day celebrations in Indian Consulate. मैंने आज मोहिनीअट्टम किया, एक पोयम मलयालम से। बहुत स्नो है बाहर में। It's very happy to see a lot of people turned up today and it's really showing up the patriotism in us. I wish all of us doing the same thing what we are seeing here. सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारा संविधान इस दिन पास हुआ था और हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम इंडिया से दूर रहते हुए भी कनाडा में अपने लोगों के संग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल्चर और हेरिटेज जो हमारा जुड़ा हुआ है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपनी धरोहर को हम आगे नई पीढ़ी तक पहुंचा पा रहे हैं। रिपब्लिक डे का मतलब है हमारा संविधान, हमारी आज़ादी। हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए पर उस परिधि में रहते हुए कि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसकी जो एक डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा अगर हम ये समझ लें कि हमारे पास सारे राइट्स हैं हमारे लिए जब तक कि हम दूसरे को परेशान ना करें। कैमरामैन मनिंदर जसल दे नाल रुपिंदर कौर, PDC न्यूज़, टोरंटो, कनाडा।